अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम जड़ांवाला की आवाज़। इस वक्त जड़ांवाला में गोश्त का मुर्गे का गोश्त जो है उसका बहरान पैदा हो चुका है। जड़ांवाला के जितने गोश्त फरोश हैं उन्होंने हड़ताल कर रखी है। आइए हम आपको लेके चलते हैं शहर के अंदर और लोगों से बात करवाते हैं कि गोश्त फरोश जो हैं इन्होंने किस वजह से हड़ताल कर रखी है, इनके मुतालबात क्या हैं और आवाम इस हवाले से क्या कहती है। आवाम को कोई परेशानी है गोश्त की वजह से या नहीं है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, आइए हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन जड़ांवाला के अहदेदारान के साथ। इस वक्त हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, मसला है क्या इनका कि इन्होंने हड़ताल की हुई है। कल का दिन भी गुजर गया, आज भी दिन गुजर गया, तकरीबन आज का दिन भी गुजर गया और आवाम जो है वो परेशान हो रही है। ज़ाहिर है कि गोश्त के बगैर तो आवाम का गुजारा मुमकिन नहीं है। सर बताइएगा कि पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम और डेजिनेशन आपका क्या है और उसके बाद आपका मसला क्या है कि जिस वजह से आपने हड़ताल कर रखी है। राजा जुलकरनैन बोल रहा, सदर हैगा वा यूनीਅਨ ਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰੇਟ ਦਾ। ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪੋਲਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਕੱਟਦੇ ਉਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡਮ ਨੇ 4 ਗਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਗਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤੀਆਂ। ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ 10 ਵਾਰੀ 8 ਵਾਰੀ 20 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ 2000 ਦਾ 5000 ਦਾ, ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਭਾਵੇਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਣ। 2 ਲੱਖ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਗਦ ਲਿਆ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਸਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੂਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਵਣ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਲ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਦੀ, ਇਤਰਾਮ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਤਰਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਰੇਟ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਡੀਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਰੈਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਰਜਨ ਅਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 4 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਜਨ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਉਹਦੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਮਾਕੂਲ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਮਕੂਲ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੜਤਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਬਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੱਕ। अगर वो साडा हक बनता असीं तो वही लै रहे हैं। कोई किसी किस्म की कोई वार्निंग नहीं दी, किसी किस्म का इनको कोई कहा नहीं है कि जनाब आप कैसे। और मज़ेदारी की बात यह है कि हैरान करने वाली बात है कि किसी के कहने पर कि जन मुझे फ़लाँ दुकानदार ने शिकायत की है। अब वो फ़लाँ दुकानदार की हो सकता है इनके साथ कोई रंजिश हो, वो रंजिश निकालना चाह रहा हो, या तो तरीक़ाकार जो मिनिमम बनता है वो ये बनता है कि मैं जाऊँ और इनसे ख़रीदारी करूँ, और ख़रीदारी करके फिर मैं कहूँ कि जनाब आपने ये गलत रेट लगाया। अच्छा सर, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं, बार बार मुझे कह रहे हैं आप। इस हवाले से पहले तो मैं आपका नाम और डेजिग्नेशन जानना चाहूँगा, और उसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि ये हड़ताल आपकी जो यूनियन के मेन बंदे यहाँ पर मौजूद हैं, तो कब तक आपका ज़हन है कि कब तक हम हड़ताल करेंगे और गोश्त की सप्लाई जो है वो बंद रखेंगे? जी इंशाल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम। तो हमारी तो कोशिश है कि सुबह ही खुल जाए, लेकिन हमसे कोई बेहतर डील करेंगे ऊपर वाले हजरात, जो भी मामला ठीक कर लेंगे तो इंशाल्लाह हम उसी टाइम करेंगे अपने दोस्तों को कि ठीक है चलें जी लेके आएँ अपना माल और सप्लाई शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे कोई मामला ही नहीं, इसी तरह हमारी गाड़ियाँ पकड़ी जाएंगी और उनके साथ यही बिहेव रहेगा कि उनको जनाब जब मर्ज़ी जहाँ मर्ज़ी आप रोक लें और उनके बंदे भी अंदर, और बाद में जनाब उस वक्त किसी टाइम बंदे के पास कुछ भी नहीं होता और वो कहाँ से 2 लाख या 5 लाख, मैडम कह रही जी हमने 5 लाख कर देना है, या इस तरह की बातें हुई उस दिन। तो ये तो नहीं चल सकेगा। इसलिए हमारी तो पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह काम चले, क्योंकि हम तो कारोबारी आदमी, हमें इन मामलात में पड़ने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। इसलिए हमारा कोई ऐसा इशू नहीं। अच्छा, एक होता है ना कि एक निकाती या 2 निकाती 3 निकाती एजेंडा होता है कि हमने ये तय किया है कि ये हमारे 2 मुतालबात हैं या 3 मुतालबात हैं या एक ही मुतालबा है, तो फिर जनाब ये हल होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। आपने क्या डिसाइड किया है, क्या आपका मुतालबा? वो देखें ना, प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे सदर साहब ने आपको बताया है ना, हमारा सिर्फ जस्ट यही मामला है कि हमें रेट जो डीसी साहब का है फार्मर को दिया हुआ है। अब फार्मर पोल्ट्री एसोसिएशन एक रेट निकालती है, वो कहती है हमने इसी पे माल बेचना है, ठीक है। डीसी साहब कह रहे हैं कि आप उनसे माल मेरे रेट पे लें, ठीक है। वो नहीं देते, मजबूरन हमें शाम को जो है रात को जब हमने माल लेना होता है तो हम वो फार्मर एसोसिएशन के रेट्स पे माल लेते हैं, ठीक है। अगर वो फार्मर एसोसिएशन पे माल रेट पे लेंगे माल, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने बढ़ा के रेट हमें दिया है, ब्लैक में माल दिया है, तो हमने भी आगे आके उसे अपना मार्जिन रखा और आगे सेल कर दिया। हम तो 3rd% है ना उसमें, और डायरेक्टली तो हमारा कोई भी मामला नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह के इनका मुतालबा जो है वो यही है कि कम से कम, ये सिर्फ पोल्ट्री वालों का मसला नहीं है। मैं समझता हूँ कि जड़ावाला में तमाम जो रेट लिस्टें जो चल रही हैं, या मेरी मालूमात के मुताबिक कोई भी चीज़ रेट लिस्ट के मुताबिक परचेज़ नहीं होती है। रेट कुछ लिखा होता है, मिल किसी और से रेट का तो जो है रेट्स दे रहे हैं ना अपने, जो वो रेट्स डीसी साहब दे रहे हैं उन पे इम्प्लीमेंट करवा दें हमें। हम उस पर लेने के लिए भी तैयार हैं और देने के लिए भी आगे तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं। हमारा मार्जिन माकूल डीसी साहब ने रखा हुआ है, लेकिन वो डीसी साहब के रेट पे हमें माल मिलना तो चाहिए, हम आगे सेल कर देंगे, बस यही है। और हमारा कोई ऐसा बड़ा मुतालबा भी नहीं है कि ये चाहिए या हम अपनी मर्ज़ी का रेट लगाएंगे, हमें अपनी मर्ज़ी का रेट नहीं चाहिए। कुछ दोस्तों ने इधर ग्रुप्स में ये बात कही है कि जी ये लोग चाह रहे हैं, डीलर हजरात ये चाह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी का रेट लें। हम अपनी मर्ज़ी का रेट ना ले रहे हैं, ना हमें कोई सेल करने की ज़रूरत है। हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि जो रेट डीसी साहब वाला है ना वो हमें मिले, हम भी उसके मुताबिक अपना माल सेल कर लें, बस 1.5 साल। और इससे ज़्यादा तो हमारा कोई मुतालबा ही नहीं है। जी नाज़रीन, जिस तरह कि इनका ये कि सिर्फ फ़कत एक ही मुतालबा है कि डीसी साहब कम से कम जो रेट इनको दे रहे हैं वो पोल्ट्री वालों से वो ख़रीद करके परचेज़ करके इनको दें, ताकि वो डीसी साहब के रेट पर ही इसको फ़रोख्त कर सकें। आपने अभी हमारे साथ रहना है, हम अब आपको अभी बाज़ारों में लेके चलेंगे, आवाम के व्यू भी दिखाएंगे कि आवाम क्या
कह रही है गोश्त के हवाले से कि आवाम के लिए क्या परेशानी है, और हम कोशिश करेंगे कि मैडम साहबा जिन्होंने ये जुर्माने किए हैं उनसे भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं, उनका मौक़िफ़ भी आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहती हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, जिस तरह के आपने एसोसिएशन वालों के जो मसाइल थे वो आपने सुन लिए हैं, अब हम आए हैं बाज़ारों की तरफ और दिखाते हैं आपको आवाम के जो मसाइल हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने घर से बताने के गोश्त लेने के लिए निकले हैं। भाई बताइएगा, आप गोश्त लेने के लिए निकले हैं तो क्या मुश्किल पेश है आपको? सुबह से निकला हूँ, गोश्त लेना है, मुझे मिल नहीं रहा, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं। जी नाज़रीन, अभी हम आपको आगे भी लेके चलेंगे और भी लोगों से मिलाएंगे। यहाँ पर हम आपसे मिलाते हैं कि कुछ जो यहाँ पर दुकान पे काम करने वाले हैं उनसे हम बात करते हैं कि ये अपने मसाइल के बारे में क्या कहते हैं। ज़ाहिर है कि ये भाई आप बताइएगा कि कल से हड़ताल है, आप इस दुकान पे काम करते हैं? जी जी, मैं अच्छा, यहाँ पे आ जाए ना, मेरे सामने आ जाएं। तो कल से हड़ताल है तो आपका ठीक है मामला चल रहा है कि या दुकानदार आपको तनख्वाह दे रहे हैं, दिहाड़ी दे रहे हैं? भाई मजदूर आदमी है, ठीक है, कल भी हमारी छुट्टी की गई है, तो एक दिहाड़ी भी ना लगे तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता, सीधी सी बात है। तो आज भी देख लें, आपके सामने दुकान भी बंद पड़ी है। अब जो मतलब कि इतनी सेविंग भी नहीं होती कि एक महीना बैठ के घर खाया जाए। तो मेहरबानी होगी, हुकूमत को चाहिए कि जो इनके मुतालबात है वो सुबह के माने जाएँ। जो कुछ भी जब कह रही है, अब जो इतना लॉस तो नहीं होगा ना, चलान भी हो रहे हैं, हमारे ही हो रहे हैं, खुद के हो रहे हैं, पीछे माफिया कोई हाथ नहीं लगाता। जो रेल स्टॉप मुख्तलिफ आती है और पीछे से हमें माल महंगा मिलता है, तो इसलिए दुकानें भी बंद पड़ी हैं। तो हमारा घर का चूल्हा वो भी बंद पड़ा है। अब इनके मुतालबा मंजूर किए जाएँ तो फिर हमारे घर का चूल्हा भी जलेगा। अच्छा, आप यहाँ पर तनख्वाह पे काम करते हैं या नहीं, मैं दिहाड़ी लेता हूँ, जितनी मेरी से दिहाड़ी होती है वही चीज़ है, जो लगेगी वो आपको वही मिलेगी, सैलरी वगैरह फिक्स नहीं है। अच्छा, हमारे साथ एक और यहाँ पर मजदूर काम है। आगे ये आपका नाम क्या है आपका? मुनीर अब्बास। मुनीर अब्बास भाई, आप कब से यहाँ पर काम कर रहे हैं? तकरीबन वबा तक देरी हो चुकी है। अच्छा, ये जो हड़ताल हुई है गोश्त की, इससे आपको कोई मसला पैदा हुआ है? जिस तरह के भाई बता रहे हैं कि आप कितने बहन भाई हैं, कितने काम करने वाले? चार भाई 2 बहन हैं। काम कितने करते हैं? 3 करते हैं। 3 काम करते हैं। लेकिन ये दौर वो है नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि जितने अफराद घर में हैं उतने ही काम करें तो फिर गुजारा होता है। अच्छा, आपको कोई मुश्किल है या कि आपकी तनख्वाह वगैरह लगी हुई यहाँ पर? दिहाड़ी लगी सर, कड़ी करनी हो दिहाड़ी लगनी बस। अच्छा, जो आपने लगानी है वही आपको मिलेगी? जी सर। जी, जिस तरह कि आपने नाज़रीन देखा, प्रोग्राम जड़ावाला की आवाज़ आपको ये दिखा रही है कि गोश्त का जो बहरान है जड़ावाला में ये शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और जड़ावाला के शहरी तो एक तरफ यहाँ पर काम करने वाले हैं जो वो भी परेशान हैं, जो डीलर्स हैं वो भी परेशान हैं, जो लाने वाले हैं वो भी परेशान हैं। अब जनाब ये खिचड़ी पकी हुई है, ये खिचड़ी कहाँ जाके ये ख़त्म होती है, अब इसका इंतज़ार है। अभी हम आपको बता रहे थे कि प्राइस कंट्रोल साहबा से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर फ़ोन किया था, अभी वो मीटिंग में बैठी है, AC साहब की मीटिंग में। जो ही मीटिंग ख़त्म होती है हम उनसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहती हैं। हमारे साथ रहिएगा, अभी आपको प्रोग्राम और दिखाते हैं और लोगों के व्यू दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर गोश्त लेने आए। तो चलते चलते मैंने इनसे पूछा कि आप गोश्त लेने आए हैं, तो वो भी बता रहे हैं कि गोश्त लेने। सर, कहाँ से आप आए गोश्त लेने? मैं 128 चक से आया हूँ। पूरा शहर ही तकरीबन बंद है, गोश्त मिल नहीं रहा है। ये हुकूमत की नाअहली है कि ये इन लोगों पे जो जुल्म कर रही है। असल जो लोग हैं, जो इनके पीछे माफियाज हैं, उनको पकड़ना चाहिए। इन पे जुर्माने कर रही है, क्यों कर रहे हैं इन पे जुर्माने? जो मेहमान आते हैं, जो लोग, किसी की फौतगी है, किसी की खुशी है, उनके लिए तो इधर के कहीं से भी पूरे जड़ावाला में गोश्त नहीं मिल रहा। अच्छा सर, ज़ाहिर है कि सफ़ेद पोशी का ज़माना है, सफ़ेद पोशी बंदा परेशान है। तो मैंने पहले भी एक दोस्त से सवाल किया था कि मेहमान आते हैं तो बड़ा गोश्त या बकरे का गोश्त क्यों नहीं ले लिया जाता, इस वाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऐसे ही है कि जितना किसी की पहुंच है उसके मुताबिक ही है। ये थोड़ा अगर इसका रेट कम होगा तो ये मज़दूर आदमी की भी, मुलाज़म आदमी की भी पहुंच में आ जाएगा। और बकरे का गोश्त तो इस दौर में मुलाज़म और मज़दूर की पहुंच से ही दूर है। यही मामला है सारा, इसीलिए लोग चिकन को प्रायोरिटी देते हैं कि चलो थोड़े रेट कम है। लेकिन अब इसके रेट्स भी जो हैं वो ये हुकूमती नाअहली की वजह से ये आसमानों के साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अगर ये कम रेट में मिल रहे थे तो अब जड़ावाला के आवाम के लिए ये भी मिलना मुश्किल हो गया है। बरकैफ अभी हम और लोगों से आपसे मिलवाते हैं और प्रोग्राम अभी जारी है, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक और दोस्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। भाई, आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले नंबर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरा ना दुकान है बर्गर शवारमे दी,
ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਰੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 550 600 ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈਗੀ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਲੈਦਾ, ਉਤੋਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਦੱਸੇ। ਸਫੇਦ ਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਤਜਾ ਵਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਵਾ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 1,500 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਕੂਮਤ ਧੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਲੁਗੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰਵੇ। ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਈ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਸਰ। मेहरबानी सर, शुक्रिया। साड़ी यही रिक्वेस्ट है जी। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा कि यहाँ पर सिर्फ मुर्गे वाले नहीं, बर्गर शवारमे वाले, घरों में मेहमानों वाले और जो दीगर जो जितने भी इनसे रिलेटेड हैं सारे के सारे परेशान हैं। अभी ये परेशानी कब तक है, कितनी चलती है, अभी देखते हैं और आपको और दिखाते हैं कि इसका हल क्या है, ये कैसे ख़त्म होगी। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जड़ावाला के एक होटल पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके ग्राहक क्या फ़ील कर रहे हैं, ये कैसा फ़ील कर रहे हैं। भाई बताइएगा कि आप गोश्त ज़ाहिर है कि 2 दिन से हड़ताल है और आपके गोश्त मिल भी नहीं रहा, इस वाले से आप क्या कहेंगे, क्या परेशानी है कि या ठीक है चलने दें? परेशानी तो फिर है ना वक्ती तौर पर। तो चिकन नहीं है, दुकान की सेल कम हो रही है, तो बड़ा भी तकरीबन कोई थोड़ा महंगा है, और चिकन जो वो भी उसका भी रेट ज़्यादा है, तो नहीं मुनासिब होता। ज़ाहिर गल है चिकन के साथ ये है गरीब आदमी खाना खा लेता है, पर रेट थोड़ा कम होना चाहिए। तो बीफ ही चलो अपनी जगह पर है, कोई नहीं खाता बीफ, चिकन को हर कोई लाइक करता है। चाहिए कि चिकन की हड़ताल जी ना ख़त्म की जाए और थोड़ा रेट मुनासिब किया जाए इसका। नाज़रीन, इनका भी यही है कि चिकन की हड़ताल जो है वो ख़त्म हो, लेकिन इनका साथ में ये है कि रेट जो है वो कम होना चाहिए। रेट इनके मुताबिक के रेट ज़्यादा है। बल्कि ये हम भी कहते हैं कि रेट होने चाहिए, कंट्रोल होने चाहिए, लेकिन उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए, उसका कोई एक रूल्स होने चाहिए कि जनाब इस अंदाज से लिया जाए जिस तरह के उनका मुतालबा है कि हमें भाई परचेज़ करके दिया जाए उसी रेट पर। बल्कि जो भी हल निकाला जाए आवाम की बेहतरी के लिए निकाला जाए, और ये हड़तालें जो है ये बड़े बड़े जुर्माने हैं, कम से कम मेरी समझ में आवाम की फेवर में नहीं जाते।